ମା ମା ହେ ମା 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 हे माँ हे माँ तू करुणार चिरंतनी निर्झर माँ तू करुणार चिरंतनी निर्झर माँ तू आशीषर मंदाकिनी धार माँ तू आशीषर मंदाकिनी धार माँ तू करुणार चिरंतनी निर्झर माँ तू करुणार चिरंतनी निर्झर पाखे पाखे अछु सदा छाईटिए होई चढ़ाई नेउछु पथ हाथ धरी तुही पाखे पाखे अछु सदा छाईटिए होई चढ़ाई नेउछु पथ हाथ धरी तुही अबोध ज्ञान शिशु मु तोहर माँ तू करुणार चिरंतनी निर्झर माँ तू करुणार चिरंतनी निर्झर बाधे नाही कंटा झटा बैसाखी खरा तो पण तो छाई अछि ये जीवन सारा बाधे नाही कंटा झटा बैसाखी खरा तो पण तो छाई अछि ये जीवन सारा ये जीवन मोरु रे तू प्रेम पारावार माँ तू करुणार चिरंतनी निर्झर माँ तू करुणार चिरंतनी निर्झर माँ तू आशीषर मंदाकिनी धार माँ तू आशीषर मंदाकिनी धार माँ तू करुणार चिरंतनी निर्झर माँ तू करुणार चिरंतनी निर्झर हे माँ हे माँ हे माँ हे माँ हे माँ हे माँ वंदे मातरम। धन्यवाद अपा वातावरण को शुद्धता रे भरी दीछु उच्च लेवल साधिका आउ थे प्रणाम करुछि। निश्चिंत आपण प्रार्थना समस्त हृदय में पहुंची थे
ମା ଆପଣଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଆହୁରି ଉଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଛି। ମା ହେ ମଧୁରାଧିପତି ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ସିଦ୍ଧିକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଏ ଯନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ବଳ, ଅତି ସାଧାରଣ, ତୁମେ ତାକୁ ଅସାଧାରଣ ତୀବ୍ରତାର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ଶାଶ୍ୱତ ଜନନୀ ଶାଶ୍ୱତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେତନାର ବିକାଶ କରାଉଛନ୍ତି। ହେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବସ୍ତୁ ସର୍ବଜୟୀ ଦିବ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷ, ହେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟିନୀ ପରମ ଜନନୀ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ମା, ଏ ଦିବ୍ୟ ବାତାବରଣ ଓ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଆସ୍ପୃହ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଜାଳି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆତ୍ମାର ସାଥୀ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଶୁଭେଚ୍ଛା, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସ୍ନେହୀ ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ ସିନା ଆନ ପାଇଁ ଝରେ ପିୟୁଷ, ମା ମା ନାମ ଯଦି ଜପୁଥିବ ପାଇବ ମଧୁର ରସ। ସୂରୁଜ ଉଇଁଲେ ମନେ ହୁଏ ସିନା ଧରାକୁ ଆସିଛି ସକାଳ, ସୂରୁଜ ଉଇଁଲେ ମନେ ହୁଏ ସିନା ଧରାକୁ ଆସିଛି ସକାଳ, ମନକୁ ତୁ ଯଦି କରିବୁ ଅନ୍ଧାର ଜୀବନ ହେବ ପରକାଳ। ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନଟାକୁ ବୁଝିବା। ସେଥିପାଇଁ ମା ତାଙ୍କର କରୁଣାରେ ବାରିଧାରାରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମଧୁର ରସ ପାନ କରାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନୀୟ ଭାବେଶ ଭାଇ ଓ ଅନେକ ସାଧକଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାର ଲାଭ ଆମେ ଉଠେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା, ତେଣୁ ଆଚରଣରେ ଲଗାଇବା। ପରମଙ୍କ ଶାଶ୍ୱତ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ 4ଟି ରବିବାର ଆଲୋଚନା ଆମେ ରଖିଛେ। ପ୍ରଥମ ରବିବାର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଲାତି ପର୍ବ ସମ୍ମାନୀୟ ସୁବାସ ଭାଇ ଆଲୋଚନା ରଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର ଭାବେଶ ଭାଇଙ୍କର ମଙ୍ଗଳା ପର୍ବ ଓ କାରା କାହାଣୀ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦରେ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପହଞ୍ଚିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଭାଇ ତ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ, ତାଙ୍କର କଥାଟି ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ମୂଲ୍ୟବାନ ବାଣୀ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ଉପଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟାତ୍ମାକୁ ଆମେ ପାଇଛେ। ତେଣୁ ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଓ ମା ଭାଇଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ରହି ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ଭାଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପ୍ରଣାମ। ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଭାଇ। କରୁଣାମୟୀ ମା, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଏକ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଭାବିପ୍ରିୟା ଅପା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ରେଣୁବାଳା ଅପା ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଅପା ପରେ ଆସିବେ। ବା ଯେଉଁ ଅପା ଭାଇମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଲିକତାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବଙ୍ଗଳା ପର୍ବ ପ୍ରକୃତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ 1872ର ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖର ସେହି କ୍ଷଣ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ବିଲାତ ଫେରନ୍ତା ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, ଡାକ୍ତର କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ। ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବାଂଲାଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବହୁତ
बड़ संक्रामक व्याधि गुड़िक से समय व्यापुला जड़े गर्भवती माँ को से सुरक्षा करने नवजात शिशु को से रक्षा करने बापा जेहेतु डाक्तर थे से कलिकता पठेदेले जड़े बंधु मनमोहन घोष घर को से जड़े बिलात करता वकिल थे तेणु सी निज घरे जन्म ही नथिबा जड़े व्यक्ति आक्रेड आनी आक्रेड इंग्लैंड रु आसी श्री अरविंद को जन्म रे सहायता करने आपण जानती बाल्य जीवन केते सुंदर मामू घर बापा और अजा जड़े राजर्षि थे राजनारायण बसु श्री अरविंद दार्जिलिंग जीवा पर्यंत घरे दुई जन बड़ भाई आउ निजे श्री अरविंद दार्जिलिंग बोर्डिंग स्कूल से पढ़िया गले से भी बेंगल रो तापरे श्री अरविंद 1872 रु जन्म वर्ष रु जो अंचल बापा चाकरी करते से जगह हूँ रंगपुर से लरेटो कन्वेंट स्कूल दार्जिलिंग रे पाठ पढ़िले तापरे 1879 रे इंग्लैंड निगला तेणु 1872 अगस्ट 15 रु 1879 पर्यंत 7 वर्ष से बंगला रे रही थे मात्र 7 वर्ष तापरे बेंगल रु विदाय हला से गले इंग्लैंड रु पाठ पढ़ी आसी रहिले बरोदा रे चाकरी कले बरोदा रे 1893 रु 1906 पर्यंत पाखापाखि 13 वर्ष बरोदा रे जीवन कटि तापरे आपण जानती अक्टोबर 16 तारीख रे 1905 मसीह जो बंग भंग है एक विराट बंगला प्रदेश को दुई भाग में विभक्त कर दिया गला पश्चिम बंग और पूर्व बंग परवर्ती समय पूर्व पाकिस्तान है 1947 रे एवं पूर्व पाकिस्तान पुणी 1971 रे बांग्लादेश नाम रे नामित है आज जो बांग्लादेश रो समस्या गुड़िक आपण पढ़ुचंती सीधा दिने भारतर अविभाज्य अंग ही थिला हम बंगला प्रदेश रो अंग ही रही थिला लॉर्ड कर्जन जेतेबेले से भली गोटे निष्पत्ति नेले समग्र बंगला प्रदेश रे गोटे बड़ आंदोलन गोटे बड़ जन आंदोलन जन असंतोष मुंड टेकी थिला यार खबर रही श्री अरविंद पाखे श्री अरविंद नो कंप्रोमाइज गोटे प्रचार पत्र लिखिले इंग्राजी रे आउ से बंगभंग आंदोलन समय भवानी मंदिर मध्य से लिखिले ये दुईटी लेखा बंगला प्रदेश रे मध्य आंदोलन को तीव्र करिवारे गोटे बड़ भूमिका ग्रहण करिथिला 1906 फेब्रुआरी 19 तारीख रे सेतेबेले से थांती बरोदा कॉलेज रो जोटा आज एमएसएस यूनिवर्सिटी महाराज शाहजी गायकवाड़ यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी रो सेतेबेले से कॉलेज थिला से कॉलेज रो से थिले वाइस प्रिंसिपल सेथिरु से छुट्टी नहीं कि बंगला आथिले फेब्रुआरी 19 तारीख रे एवं फेब्रुआरी 19 रु मार्च 11 पर्यंत
आपण हिसाब करुथिबे समय गुड़िक फेब्रुआरी 19 रु मार्च 11 पाखापाखि मासे काल पाखापाखि मासे रु 8 दिन कम 22-23 दिन से रहिले सेही समय गोटे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कलिकता रे तैयारी हला एवं तार पर दिन गोटे बंगला भाषा रे प्रकाशित होतिबा गोटे वीकली जाको कहबा हमें साप्ताहिक पत्रिका जुगांतर सेटा प्रकाशित होबार निष्पत्ति निया गला श्री अरविंद सेइथिरे एते गुडे रिवोल्यूशनरी आर्टिकल विप्लवात्मक लेखा लेखिथिले सेही वर्ष 1906 रे एप्रिल 14 रे गोटे बरिशाल बोली गोटे जगह अछि बंगला रे सेठी गोटे बरिशाल कॉन्फ्रेंस गोटे अधिवेशन हैला एवं श्री अरविंद बिपिन चंद्र पाल सहित ईस्ट बेंगल सारा बुलुथिले इंग्लैंड रे पाठ पढ़ी बरोदा रे एते बड़ चाकरी रे अधिष्ठित थिबा गोटे कॉलेज रो वाइस प्रिंसिपल दायित्व रे थिबा 710 टंका सेते बेले दरमा पाउथिले तांको सेते बेले सुना भरी 20 टंका थिबो किने संदेह 100 टंका रे 5 भरी सुना 700 टंका रे 35 भरी सुना 35 भरी सुना रो आज तारीख रे दाम केते आपण हिसाब करिवे 20-21 लाख टंका आजिर सुना मूल्य रे से दरमा पाउथिले से चाकरी छाड़ी के एक प्रकार जते बेले इठी बुलुथिले लंबा छुट्टी नैथिले फेब्रुआरी जून पर्यंत पाखापाखि 4 मास अनेक व्यक्ति लिखिछन्ति मुने मेमोरी रे पढिथिली खाली श्री अरविंद को देखिया पई से तो स्टेशन रे उल्लौथिले सह सह लोक किए गछ ऊपर चढ़ी देखुथिला किए कोठी घर छात ऊपर थाई देखुथिला किए से श्री अरविंद जे एते लोक मुखरे तांकर गोटे प्रसिद्धि बंगला प्रदेश रे व्यापी जाइथिला जून मासरे से फेरी आसले बरोदा जून 19 तारीख रे पुणी जाई कि कॉलेज रे कहले आज्ञा मते गोटे वर्ष छुट्टी दियंतु विदाउट पे मु दरमा नेबी नै बंगला को फेरी आसले अगस्त 6 रे वंदे मातरम पत्रिकार प्रकाशन हला माने गोटे मास जुलाई परे वंदे मातरम पत्रिकार से हेले असिस्टेंट एडिटर आउ अगस्त मासरे जो आपण को कही रखे जो खोला जाइथिला जोटे एजुकेशन ट्रस्ट मार्च 11 तारीख रे 1906 रो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कलिकता रो से गोटे बेंगल नेशनल कॉलेज खोलिले बेंगल नेशनल कॉलेज रो प्रथम फाउंडर प्रिंसिपल होचंती श्री अरविंद तापरे वंदे मातरम पत्रिका गोटे कंपनी भावरे अक्टोबर 13 रु कार्य कला अक्टोबर डिसेंबर मासरे से 1906 रे श्री अरविंद जो नेशनल पार्टी गोटे थिला बेंगल अनुशीलन समिति बा अन्यान्य कथा गुड़िक से गोटे प्रकार नेतृत्व दवा आरंभ कले तांकर प्रवास चलिला डिसेंबर मासरे देवघर गले डिसेंबर रे हला भारतीय जातीय कांग्रेस रो कलिकता अधिवेशन डिसेंबर शेष
1907 ଆସିଲା। 1907 ରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥାଏ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବି ଅନେକ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପତ୍ରିକା ପାଇଁ। ଏବଂ ଜୁନ୍ 14, 1900 ଖୁଲନା, ଆଜି ତାରିଖରେ ଖୁଲନା ରହିଛି ସେଇ ବାଂଲାଦେଶରେ, ସେଇଠି ଯାଇକି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ। ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଯେମିତି ଆମର ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଜୁନ୍ ମାସରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପତ୍ରିକାର ଖାନତଲାସି ହେଲା। ସେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କାଳେ ଗିରଫ କରାଯିବ ସେଇ ଆଶଙ୍କାରେ, ଯେହେତୁ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବେଙ୍ଗଲ ନ୍ୟାସନାଲ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆପତ୍ତିମୂଳକ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପତ୍ରିକାରେ ଗିରଫ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସେଥିରେ ମୁକୁଳି ଗଲେ। ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ବେଶୀ କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ କଥା ନଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଯୋଉ କଲେଜର, ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ କଲେଜର ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗିରଫ ହେଲେ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ରାଜଦ୍ରୋହମୂଳକ ଏଭଳି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିଲା, ସେତେବେଳକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ଇନ୍ ବେଙ୍ଗଲ ର ଜଣେ ଜାତୀୟ ନେତା ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ସାରିଥିଲେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ 1907 ମସିହାର ବିଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବାସ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ସେ ମିଦନାପୁରରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 14ରେ କଲିକତାରେ ସେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 15ରେ ସେ ପୁଣି କଲିକତାର ବିଡନ ସ୍କୋୟାରରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 21ରେ ସେ କଲିକତାରୁ ସୁରାଟ ଅଭିମୁଖରେ ଯାତ୍ରା କଲେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ସୁରାଟ ଥିଲା ବରୋଦା ପାଖରେ ଏକ ସହର, ଗୁଜରାଟ ପ୍ରଦେଶ, ଆଜିର ଗୁଜରାଟ ପ୍ରଦେଶ। 1907 ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ସେଇଠି ସଂଗଠିତ ହେଲା। ଯିବା ବାଟରେ ନାଗପୁରରେ ସେ ନିଜର ଏକ ବକ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗତିବିଧି ଗୁଡ଼ିକ କଣ ରହିଥିଲା? ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର
24-25 रे जो जातीय प्रतिनिधि माने सब जाइथिले तांको सहित से सभा कले परामर्श कले। डिसेंबर 26 रे सुराट अधिवेशन रो प्रथम दिवस गला। द्वितीय दिवस मध्य अंतर्हित हैला। द्वितीय दिवस रे श्री अरविंदर नेतृत्व रे जो माने रेडिकालिस्ट थिले चरमपंथी जो माने कहा जाउथला कांग्रेस दुई भाग रे विभक्त होइतला नरमपंथी एवं चरमपंथी। से चरमपंथी मानकर जने बड़ नेता थिले श्री अरविंद। कांग्रेस रे सेतले दुईटा भाग रे विभक्त हो गला सुराट। डिसेंबर 28 तारिख रे श्री अरविंद जो माने चरमपंथी जातीयवादी थिले तांकर नेतृत्व नेले एवं डिसेंबर 31 तारिख दिन से जेतु सुराट को जाइछंती तांको बरोदा जीवा को इच्छा हला। बरोदा तांकर प्रिय जगह जोटी से 13 वर्ष रहिछंती। महाराज सायजी गायकवाड़ 3 को सहित तांकर बंधुता रहितिला एवं बरोदा जीवार अन्य एक कारण विशेष कारण रहितिला सुराट रो काहेकि ना सेतेबेले जणे महाराष्ट्र जोगी थिले से गोटे सरकारी ऑफिस रे किराणी भाव रे काम करथिले सत इंग्रेज सरकार अधीन रे किंतु तांकर वास्तविक जोग संपर्क रे अनेक धारणा रहितिला। विष्णु भास्कर लेले को सहित तांकर परिचय करे देथिले तांको सान भाई बारिन। विष्णु भास्कर लेले कहले जे गोटे रूम दब मु तमे राजनीतिक कोनोसी कार्यकलाप रे रहिबो नै 3 दिन मो संगे पूरा रहिबो। पूरा लेलेंको सहित तांको संपर्क जो कते दिन रो सेटार पूरा डॉक्यूमेंट्स मिलुची। लेले तांको कोन कहले श्रीअरविंद तांको कोन कहले खाली हम एतिक बुझिबा जे श्री अरविंद प्रथम थर पई भारतीय जोग जीवन रो गभीरता संपर्क रे लेलेंको ठारू शिक्षा नेले। तेरे मूल कथाटी रहितिला हाउ टू साइलेंट योर माइंड। मन को केमती नीरव करा। मन होची चिंता मानकर एक हाट मा जे भली कहछन्ती। आम मन मध्य को ठेली पसी आसुथिबा चिंता माननको जदि आमे ता जागारे नीरवताटी आनी परिबा ताले आपणको जीवन रे सबुठारु बड़ क्रांति आसीजो। तांको जीवनीकार लिखुछन्ती फॉलोइंग लेलेज इंस्ट्रक्शंस एस्टैब्लिशेस कंप्लीट साइलेंस ऑफ द माइंड अटेनिंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ द साइलेंट ब्रह्म। तापरे श्री अरविंद सेठी किछि दिन रही गले। पुनारे गोटे वक्तव्य रखिले जनवरी 12-13 2 दिन। बॉम्बे रे नेशनल एजुकेशन उपरे वक्तव्य देले। वर्तमान रो संकट उपरे बॉम्बे नेशनल यूनियन रे गोटे भाषण देले जनवरी 19 रे। नासिक रे जनवरी 24 रे वक्तव्य रखिले। धुलिया बोली गोटे स्थान अछि सेठी जनवरी 26 रे वक्तव्य रखिले। 28-29 अमरावती गोटे प्रसिद्ध स्थान सेठी निजर वक्तव्य रखिले। पुणी 30-31 रे नागपुर रे वक्तव्य रखिले। फेब्रुआरी 1 रे वक्तव्य रखिले। एई भली भाबरे मार्च 10 रे से फेरिले बेंगल। एई भली भाबरे तांकर यात्रा अब्याहत रहिला। आपण भाबंतु मु एई कथा गुडी को उल्लेख करियार मूल कारण होछि से केते क्रियाशील रहउतिले केते सक्रिय रहितिले राजनीति रे। एई भली भाबरे तांकर जेतेबेले सब चेतला रे कलिकता रे बारोई रे किशोरगंज रे सबु समय रे तांकर जेतेबेले एई भली सब संगठन चलिला कर्मी सम्मेलन गुडी को कले लोक माननकु जागृत करैले इंग्रेज सरकार विरुद्ध रे। तो इंग्रेज सरकार
तांकर सान भाई को बारिंद्र तांको मे 2 रे गिरफ्त कले बारिन को मे 5 रे तांको आलीपुर जेल को निया गला एवं एई भली भाबरे श्री अरविंद को 1908 मे 5 तारिख रे से आलीपुर गोटे मकद्दमा रे आलीपुर बम केस जाको कहती अति प्रसिद्ध गोटे ऐतिहासिक केस से गिरफ्त करागला मे 5 तारिख 1908 मसीह एवं मे 6 1909 रे तांको जेल रु मुक्त करागला ये जो गोटे वर्षर कहानी को प्रभु तांको जीवन रे लिखिचंती जोडा को उद्धार करा जाय कि परे कारा कहानी ना रे प्रकाशित होईची जो कारा कहानी ऊपर हमें आज आलोचना करि परिबा तांको जेतेबेले कारारुद्ध करागला समग्र भारतवर्ष स्तब्ध हला ए खबर रे सारा बंगला प्रदेश चिंतित हो पड़ा कौन करा जाई परिबा एवं प्रभु तांको कारा कहानी एक तो दीर्घ कहानी गोटे वर्षर कहानी खाली आमे एतिकी चुंबक रे कहि परिबा तांको पाखरे मात्र रहितिला 2टी कंबल गोटे थाली गोटे गिना जहाँ कहते ताटिया आम ओडिया भाषा रे आपण आ कौन कहते बाटी कौन जहाँ कहते एतिक होची तांकर बंचिवार उपादान 9x5 रो गोटे छोटिया घर जोटी भल करी सोई होबनी भल करी बसी होबनी भल करी छिड़ा ही होबनी से भली गोटे अंधार कोठरी सेठी आपण भावंतु पाईखाना नथिला सेतबे सकाळे गोटे आलोकातरा लगा जाइथिबा गोटे पाछिया तांको दिया जीवो पॉलिथिन तो नथिला आलोकातरा लगे दिया जाउथिला एवं सेइटारे निजर शौच कर्मटी करिया पड़ियो पाईखाना जेतु नाही सेइठी 1 सेइठी 2 गोटे दुर्गंध होउथबो दिन सारा से पुणी केते बेले मेहनत आसीबो से सफा हो जो ताटिया रे से खाउथिले सेई ताटिया रे शौच होबाक पड़िबो सेइतिरे गाधेबाक पड़िबो बिलात फेरंता डाक्तरंकर पुओ निजे जे बिलात रे पाठ पढ़िचंती जे एते बड़ चाकरी करिथिले एई भली गोटे परिस्थिति भितरे जेते बेले भाग्य तांको नै कि पकई दोची आमे से जगह रे कोन करिथांते गोटे जनमानव शून्य जगह जोटी केवल तांको जगी रहउतबा प्रहरी मानकर पाद शब्द भिन्न आ किछि शोभे नाही पाद शब्द केवल मनुष्य को देखिबा असंभव से फांक बाटे प्रहरी माने देखंती जने व्यक्ति अतंद्र रहउचंती सोउ नांती घंटा घंटा छेड़ा रहउचंती गोटे प्रश्न तांको बहु समय आहत करुला मु तो देश मातृकार सेवा करुछि मु तो ये भारत माता को देवी बोली मने करिछि मो देवी मार छाती रे बसिकी जी रक्तपान करुछि गोटे राक्षस शक्ति मु ता विरुद्ध रे जदि मोर लोक मान को मतौछि एथिरे मोर कोन अपराध रहिछि किंतु सुना जाए तांको जेल कोठरी भितरे अनेक व्यक्तिंकर साक्षात मिलुछि सूक्ष्म रूप रे ता मध्ये रहिचंती स्वामी विवेकानंद जे 1900
समय नुआ नुआ 1902 रे जे शरीर छाड़ी 1908 रे ये जेल जाई 6 वर्ष पर सुना जाए सूक्ष्म रूप से श्रीकृष्ण दर्शन पाई एवं भगवत गीता पढ़िवार प्रेरणा पाई एते बड़ दुख भितरे से उपनिषद पढ़ुले गीता पढ़ुले ध्यान करुले जोग अभ्यास करुले श्रीकृष्णकर दिव्य चेतन रहिबार चेष्टा करुले एवं एपरी हला तांको सब किछि वासुदेवमय दिसिला जो गाई चराली मानकर डाक भी तांको कृष्णंकर डाक भली सुबिला समस्तंक पाद शब्द तांको कृष्णंकर पाद शब्द परि लागिला एणे तांको ससुर चाहिथिले सबुठारु बड़ वकील तांको केस रो परिचालना करू किंतु घरर बड़ पुओ ये कलिकता रे प्रेसिडेंट जेतरे प्रिंसिपल आसिले 150 टका दरमा पाउथिले से चाकरी पुणी छाड़ीदेले घरर एकमात्र रोजगारिया पुओ श्री अरविंद बाकी जो 2 जन विनय भूषण मनमोहन से माने तांको परिवार परे कले से माने कुआड़े गले जना पड़लानी घरे बापा नाहंती बापांकर देहांत हो जाइछि 1893 घरे मुंड खराब हो जाइथिबा गोटे माँ अभियाड़ी गोटे भौणी जमा बेसी पाठ पढ़ी नथिबा से पुणी जेल जाइथिबो सेई भली गोटे समय रे से भौणीटी एक प्रकार भिक्षा करछंती 26,000 टंका आसीछि चित्तरंजन दास देशबंधु चित्तरंजन दास जे श्री अरविंदर बंधु थिले से वकील मकद्दमा नहीं छंती एवं सेई कोर्ट रूम रे से जहा कहिथिले जे आमे जो व्यक्ति को आज इतिहास काठगड़ा छिड़ा करिछु सेई होचंती मानवतार प्रेमिक सेई होचंती देशमातृकार एते बड़ विराट व्यक्तित्व जी देश प्रेमर कवि जहांकर शब्द शुणिया पृथ्वी दिन अपेक्षा करिवो से भली व्यक्तित्व को से जो अभिहित करिसंती से कथा आपण शुनिचंती जानिचंती एपरी वासुदेवंकर कृपा हला तांकरी बंधु विचक्राफ्ट ही जज थिले जो मकद्दमा रे 24 जन गिरफ होइतिले अनेक लोक आजीवन कारादंड पाइले जो थिरे खुदीराम भली व्यक्ति को फांसी दिया गला सेई मकद्दमा रे सबुठारु बड़ अभियुक्त जहां को मुख्य अभियुक्त बोली कहा जाए श्री अरविंद मुकुलिले वर्षे परे पूरा विचारर तारीख गुड़िक कौन होइतिला कोर्ट रूम भितरे कौन कथावार्ता होइतिला चित्तरंजन दास कौन कहितिले संपूर्ण विवरणी इतिहास साहित्य रखिछि अक्टोबर मासरे थरे सिस्टर निवेदिता देखागले चित्तरंजन दास सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंदंकर जने शिष्या जने अनुगामिनी से किंतु श्रीअरविंद भारी भल पाउथिले श्रीअरविंद को स्वयंभू शिव बोली कहउथिले कर्मयोगी पत्रिकार दायित्व मध्य नैतिले से चित्तरंजन दास कोट पॉकेट रे गोटे गोलाप रखिले चित्तरंजन दास कहले कहीं ना से कहले मु सुनिथिली आपण बहुत भल
किंतु एते भल मु जानि नथिली जे श्री अरविंद को आपण एते भल पांती और श्री अरविंद को जेल रु मुक्त करिवारे आपण एते बड़ भूमिका निर्वाह करिसंती। से दिन भी चित्तरंजन दास कहिथिले जे सतरे कोन श्री अरविंद जेल भितरे थिले। जेल भितरे थिली मु निजे मते सेही परी लागिछि। जेते बेले मे 6 रे से आसिले जेल भितरु फेब्रुआरी 10 पर्यंत से कलिकता रे रहिले। मे 14 रे से बेंगली पत्रिका को गोटे चिठी लिखले। मे 30 रे ऐतिहासिक उत्तरपड़ा अभिभाषण देले। आमे जो ऐतिहासिक उत्तरपड़ा अभिभाषण पढुछु मे 30 रे उत्तरपड़ा अभिभाषण परे जून 13 रे कलिकता रे मध्य अभिभाषण रखिले। जून 19 रे कर्मयोगी पत्रिकार प्रकाशन आरंभ होला। बहुत लेखा श्री अरविंद निजे लिखिथिले कर्मयोगी पत्रिकार। बरिशाल गस्त कले। बरिशाल जिल्लार प्रवास कले। जून 26 रे खुलना ठारे भाषण देले। जून 27 रे द राइट ऑफ एसोसिएशन हावड़ा रे वक्तव्य रखिले। एई भली भाबरे आपण आउ गुटे कथा जानती समस्ते एन ओपन लेटर टू माय कंट्रीमेन जहा कर्मयोगी पत्रिका रे प्रकाशित होइतिला। जुलाई 31 रे से प्रकाशित कले। जेल रो मुकुलाल प्रेस तांकर सबुठारु बड़ काम थिला कर्मयोगी पत्रिकार प्रकाशन एवं धर्म पत्रिकार प्रकाशन। धर्म पत्रिकार फास्ट इश्यू आसिला अगस्त 23 तारिख रे 1909 रो। ता थिला गोटे वीकली पत्रिका। मुख्य लेखा गुडी को श्री अरविंद ही लेखुथिले। एई भली तांकर लेखा प्रकाशित हला। प्रवास चलिला, वक्तव्य चलिला, संगठन चलिला। तांकर प्रसिद्धि जने नेता भावरे एई भारत वर्ष रे बढ़ी चलिला। एवं भाई भौणी माने आमे जो दुर्गा स्तोत्र पढ़ुचंती पाठचक्र रे ए दुर्गा स्तोत्रटा प्रथमे बंगला भाषा रे लेखा जायतिला बंगला देशर युवक मानक पई। एटा सेते बेले धर्म पत्रिका रे साप्ताहिक पत्रिका रे प्रकाशित होइतिला अक्टोबर 18 तारिख 1909 मसिया रे। एवं जेतेबेले कर्मयोगी पत्रिका एते बेसी प्रकाशित हैला, एते बेसी आदृत हैला, धर्म पत्रिका एते बेसी आदृत हैला, श्री अरविंदंकर प्रसिद्धि बढ़िला। तांको जेल जीवन परे तांकर एई विप्लवी जीवनटी को सब मनीष आदर कले। हजार हजार मनीष तांकर अनुसरण करिया को लागिले। एते बड़ प्रकांड व्यक्तित्व जे एते बड़ ज्ञानी, एते बेसी पाठ पढ़िसंती, एते सुंदर लेखि पारुचंती, एते सुंदर कहि पारुचंती। इंग्रेज सरकार रो विश्व दृष्टि सब बेले तांको ऊपर पड़िला एवं से दिन संध्या बेले खबर दिया गला जे कर्मयोगी पत्रिका को आज ता पत्रिका कार्यालय को गिरफ्त करा जो, माने खानतलाश करा जो, श्री अरविंद को गिरफ्त करा जो। श्री अरविंद को कही जने एपरी निर्देश देले। गोटे भगवत पुरुषर बाणी भली एई कथाटी आसिला जे तुम चंदन नगर चली जाओ। चंदन नगर सेठू किछि घंटार बाट नदी पथरे जीवाकू पड़े।
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 1910 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଚନ୍ଦନନଗର ଚାଲିଗଲେ। ସେଇଠି ଜୀବନଟି ଆହୁରି ଅଦ୍ଭୁତ। ଯୋଉ ମୋତିଲାଲ ରାୟଙ୍କ ଘରେ ସେ ରହିଲେ, ସେ ଘରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସି ଏଠି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନନଗର କାହିଁକି ଗଲେ ନା ସେଇଟା ଥିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଉପନିବେଶ, ସେଠି ଇଂରେଜ ପୋଲିସ ସେତେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ସେଇଠି 1.5 ମାସରୁ ଅଧିକ କାଳ ସେ ରହିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିଛି 1910 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସେ ଗଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରେ ସେ ଚନ୍ଦନନଗରରୁ ପୁଣି କଲିକତା ଆସିଲେ। କଲିକତାରୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପାଇଁ SS ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଜାହାଜରେ ସେ ବସିଲେ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ। ତା ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 କୁ ଯଦି ହିସାବ ନବା, ଫେବୃଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଫେବୃଆରୀ 10 ରୁ ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦିନ ହେଲା। ସେଇ ସମୟ ସେ ଚନ୍ଦନନଗର ରହିଥିଲେ। ସେ ମୋତିଲାଲ ରାୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ସେ କଥା କହିନଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆସିକି ଏଠି ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା କାଠ ଗଲା, ତାକୁ ସଫାସୁତୁରା ଟିକେ କରାଯାଇକି ସେଇଠି ସେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ମୋତିଲାଲ ରାୟ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯାହା ଆଣୁଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଅଧା କରିଦଉଥିଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଲୁଗା ଘୋଡେଇକି ଆଣିକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ସେଇଠି ଖାଉଥିଲେ, ସେଇଠି ବସି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହଉଥିଲେ। ହେଇଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବେଙ୍ଗଲୀ ଜୀବନ, ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରଦେଶରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରେ ସେ ଚନ୍ଦନନଗରରୁ ଆସି ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଯୋଉ କଲିକତାରେ ବସିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପାଇଁ, ସେ ତ ଏକ ଅତି ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣାର ଗନ୍ତାଘର। ତାପରେ ସେ ଏପ୍ରିଲ 4ରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ବଙ୍ଗଳା ପର୍ବ। ତାମାନେ ଏଇ ବଙ୍ଗଳା ପର୍ବଟି ବଡ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୟ ପାଇଁ, 1906ରୁ 1910 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଏଇ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତ ମାତାର ସେବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ, କର୍ମଯୋଗୀ ପତ୍ରିକା ଏବଂ ଧର୍ମ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ସମୟଟିକୁ ସେ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିବାରେ, ବିପ୍ଳବକୁ ବଢେଇବାରେ ଯେତିକି ବଡ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସକ୍ରିୟ ସମୟ ଏଇଟା, ସବୁଠାରୁ ଘଟଣାମୟ ସମୟ ଏଇଟା। ଏବଂ ଜେଲ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସାଧନା ସେଇଭଳି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାଧନା ହେଇପାରିଥିଲା, ଯାହାଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପନିଷଦିକ ବା ଗୋଟେ ବେଦାନ୍ତିଷ୍ଟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିର ଯୋଉ ଦିଗଟି ରହିଛି, ସେ ଦିଗଟିକୁ ସେ ସେଇଠି ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଯୋଉ ସାଧନାଟି ସେ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରଦେଶକୁ ଆସିବା ପରେ। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାଟି ସେ ଶିଖିଥିଲେ ବରୋଦାରେ ଥିଲାବେଳେ, ଆଉ ସେଇ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଶିଖିବାଟା ତାଙ୍କର କାମରେ ଆସିଲା। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସେ ସଂସ୍କୃତ ପଢୁଥିଲେ ଖୁବ ଭାବରେ। ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରଦେଶ ରହିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ କାମ ଥିଲା ସଂସ୍କୃତ ଶିଖିବା। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ବିରାଟ ଜୀବନର ବିରାଟ କାହାଣୀ, ବିରାଟ ତାର ଇତିହାସ। ସେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରୁ କେବଳ ତାରିଖ ମସିହା ଗୁଡିକ ଖୋଜିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। କାର୍ଯ୍ୟଟି ହଉଛି ଯେଉଁ ତପସ୍ୟାଟିକୁ ସେ ଜୀବନରେ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ତପସ୍ୟାର ସିଦ୍ଧିର ଦାୟାଦ ହବା ଏବଂ ସେଇ ସିଦ୍ଧିକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଧାରଣ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପରେ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପରେ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ଆଗରେ ଆଜିର ଦାୟିତ୍ୱ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାସରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅର୍ଥ ଇତିହାସର ରୋମନ୍ଥନ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ମେକିଂ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ତାଙ୍କ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ଇଏ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପୂର୍ବକ ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ
अनेक शुभेच्छा। वंदे मातरम। माँ जेते कृतज्ञता देले भी कम पड़ीजिव, कारण भाई को व्यक्तित्व ही से भली, तांकर बुझेवा शैली निश्चिंत भाव में बोधगम्य, समस्त को आत्मा को निश्चिंत पहुंची थी। एतिकी भाई को प्रार्थना रखिबा, भाई को जीवन रे सबले मधुरता भरी रहू, सबले से महांकर दिव्य करुणा भरी रहू, तांको चेतन रे आहुरी उद्धायित हेउ, यही प्रार्थना रखिबा। तांको जीवन पथ कुसुमित हेउ। बहुत बहुत कृतज्ञता। भाईंकर वार्षिक उत्सव गोटे अच्छी, तथापि भी भाई शेष पर्यंत आलोचना रखिले। बहुत बहुत कृतज्ञता भाई। माँ प्रभु को कृतज्ञता, कृतज्ञता कम पड़े जीव भाई को। माँ करुछि माँ बंदन, दिय तुम स्पंदन, सप्त सुर भरा होई उठु आम जीवन। जीवनर अलंकार हेउ सत्य आधार, राग हेउ दया क्षमा धैर्य सुविचार। आलाप जे हेब आम प्रभु मा नाम, कर्म मध्ये जागे उठु तुम चेतना मर्म। लक्ष्य हेउ मानव जगतर मैत्री भाव, साहस विश्वास दे जीवनटी गढ़िब। यही प्रार्थना चेतनार मर्म समस्ते हृदय रे धारण करू, आ साहस विश्वास सहित लड़ी जीवन को अतिवाहित करंतु। यही प्रार्थना सहित समस्त दिव्य आत्मा को कृतज्ञता धन्यवाद देउची, यही मुहूर्तता देइथिबारु, यही समयटी को देइथिबारु। वर्तमान आमे जीवा शेष पर्यायर अच्छी भक्ति अर्घ्य। आमर सम्मान्य ज्योति अपा तांको कंठरु आमे सुनिबा शेष वंदनाटी निरवत मध्यरे। ज्योति अपा को मु अनुरोध करुछि, तांको कंठरु सेही वंदनाटी रखन्तु। अपा वंदे मातरम। प्रणाम। माता शरणं मम, श्री अरविंद शरणं मम। माँ प्रभु पाद पद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम। मातृकृपा ग्रुप रे जोड़ी होइतिबा समस्त अपा भाई को मोर प्रणाम। वंदे मातरम। मंगलम सर्वमंगलम, श्री अरविंद केवलम। मंगलम सर्वमंगलम, श्री अरविंद केवलम। मधुरम रूपमधुरम, मधुरम रूपमधुरम, श्री अरविंद केवलम। मंगलम सर्वमंगलम, श्री अरविंद केवलम। मंगलम सर्वमंगलम, श्री अरविंद केवलम। तुमे ही सृष्टिरा सृजनी पुरुष, प्रतिटी आत्मारा तुमे ही विश्वास। तुमे ही सृष्टिरा सृजनी पुरुष, प्रतिटी आत्मारा तुमे
ही विश्वास, तुम्हें ही विलय, तुम्हें ही विलय, तुम्हें ही समय, तुम्हें पुण्य आशा, तुम्हें ही उदय, तुम्हें ही विलय, तुम्हें ही समय, तुम्हें पुण्य आशा, तुम्हें ही उदय। सुंदरम विश्व सुंदरम, सुंदरम विश्व सुंदरम, श्री अरविंद केवलम, मंगलम सर्वमंगलम, श्री अरविंद केवलम, मंगलम सर्वमंगलम, श्री अरविंद केवलम। फुलारे फुलारे तुम्हें ता पुलक, धूपरे महक, दीपरे आलोक। फुलारे फुलारे तुम्हें ता पुलक, धूपरे महक, दीपरे आलोक। सकाळ सूर्यारे, सकाळ सूर्यारे तुम्हें ही किरण, सकाळ जीवर तुम्हें ही निर्वाण। सकाळ सूर्यारे तुम्हें ही किरण, सकाळ जीवर तुम्हें ही निर्वाण। कमलम दिव्य कमलम, कमलम दिव्य कमलम, श्री अरविंद केवलम, कमलम दिव्य कमलम, श्री अरविंद केवलम। सजलम सदा सजलम, सजलम सदा सजलम, श्री अरविंद केवलम। मधुरम रूप मधुरम, श्री अरविंद केवलम। मंगलम सर्वमंगलम, श्री अरविंद केवलम, श्री अरविंद केवलम, श्री अरविंद केवलम। धन्यवाद अप्पा। तांको नामरे तो अमीय रस अच्छी, क्षुधा निवारण हो, केवल प्लावित मन टे दरकार। तार करुणार बारिधारा निश्चित आसो। से मनोवृत्ति रे ये प्रार्थनाटी थिला तांको नाम सहित निश्चित भाव में समस्त हृदय रे पहुँचब, माँ प्रभु पाखे पहुँची थी। बहुत बहुत कृतज्ञता और धन्यवाद। यही प्रोग्राम रे सम्मान्य रेणुअप्पा आहु पूज्य भवेश भाई और सम्मान्य ज्योति अप्पा निश्चित भाव में महिमा मंडित करिसेंती। बहुत बहुत कृतज्ञता।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା। ଆଗାମୀ ତୃତୀୟ ରବିବାରରେ 18 ତାରିଖ ପଡିବ। ସମ୍ମାନୀୟ ବୀର ଭାଇଙ୍କର ଅଛି ବରଦା ପର୍ବ ଆଲୋଚନା। ଏତିକିରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଶେଷ କରୁଛି ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ରୂପକ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରି ମା ନାମ ଜଡ଼ିତ ଶେଷ କରୁଛି। ମା 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 Ma 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 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ହର ହର। ଜୟ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ।